Welcome students. We are studying class 12th physics chapter number 1 electrostat. As of now we have discussed about electric force, Coulomb's law, electric field, dipole and its electric field of lines key properties. Today we are going to start NCERT examples. Let's begin with today's lecture. NCERT example number 1. How can you charge a metal sphere positively without touching it? Without touching, if he is asking, then we will use induction, the method of induction. The method of charging is known as induction, and another method is known as conduction, where we will charge the body by touching it. So this is the method we have discussed in the previous class. एक मेरे पास बॉडी है, उसके पास में एक चार्ज बॉडी लेके आया, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, उसकी वजह से यहाँ पर मेरे पास इंड्यूस्ड चार्ज प्रोड्यूस हुआ इनसाइड अ बॉडी ए, और व्हेन आई हैव अर्थेड इट, सो द होल एक्सिस चार्ज और द नेगेटिव चार्ज वेंट टू द ग्राउंड, राइट? सो द होल नेगेटिव चार्ज वेंट टू द ग्राउंड. द फर्स्ट सिनेरियो वाज ए, देन इट बी, देन सी एंड द लास्ट स्टेप इज डी. जब वो अनचार्ज थी, उसके बाद जब मैं उसको लेके आया तो एक इंडक्शन या इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हुआ. जब मैंने इसको ग्राउंड किया सी पार्ट में, तो ये सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया और नाउ इट हैज़ बिकम द चार्ज बॉडी. कमिंग टू द एग्जाम्पल नंबर 2. Example number 2 also we have discussed in our previous lecture. You can look at my previous lecture that 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स को अगर निकाला जाए पर सेकेंड में, तो एक बॉडी को 1 कूलम्ब चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा? This we have discussed in the worksheet as well. You can go through our chat section. We got the answer around 198 years, right? Most of you have given the correct answer. 6.25 into 10⁻9 seconds or 198 years. Approximately we have take it that 200 years. Now coming to the third, this question we have discussed in the class itself कि how much positive and the negative charge is there in a cup of water. एक cup of water में कितना positive और negative charge होगा? Water के लिए अगर हम बात करें तो formula is H2O. Hydrogen is containing 2 electrons and 2 protons. Oxygen is containing 8 electrons and 8 protons. So number of electrons will be 10 and number of protons will be 10. Now एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना चार्ज होगा? मेरे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब. और अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है तो 10 इलेक्ट्रॉन के पास कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय दिस. दिस इज फॉर ओनली वन मॉलिक्यूल, बट हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी देयर इन अ कप ऑफ वाटर? सो कप ऑफ वाटर के लिए हमने कितना मास लिया था? अराउंड 250 ग्राम, राइट? H2O का अगर मॉलिकुलर मास देखा जाए तो H2O का मॉलिकुलर मास कितना था? मॉलिकुलर मास H2O का था 18 ग्राम. तो मोल्स भी हम निकाल लेंगे. मोल कंसेप्ट हमने पढ़ा होगा. मोल्स इज इक्वल्स टू द मास अपॉन मॉलिकुलर मास, एंड द मास वाज 250 ग्राम and the molecular mass was 18 gram. So number of the molecules or number of the moles we will have around this one. We will multiply this by Avogadro number to get the number of molecules. These number of the electrons and the protons into 10. The number of electron and proton in one molecule into the charge. This much of the positive or the negative charge is present in a cup of water. Is it clear? Coming to the example number 4. In the example number 4, yeah, this is a very much important example. We can say that here he is asking about the comparison between the electrostatic force and gravitational force. We have to compare the strength of the ratio of their magnitude for electron and for a proton, right? In the second part we have to compare it only for 2 protons. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जनरल सॉल्यूशंस लिख लेते हैं. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए अगर हम बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें, देन वी विल हैव अ डायरेक्ट फार्मूला Fe इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स वी हैव अ डायरेक्ट फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स which is equals to Fg is equals to G m1 m2 upon R square, right? अब अगर मेरे पास सिनेरियो में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन था पहले सिनेरियो में, तो एक प्रोटॉन ये रहा, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आई थिंक
it is clear that charge of electron is equals to the charge of proton. The charge of electron कितना होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इतना ही मेरे पास चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा, तो प्लस माइनस की सिर्फ डिफरेंस होगा। नाउ अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है तो सबसे पहले मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन भी देख लेते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है स्टूडेंट्स 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, एंड मास ऑफ प्रोटॉन विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ठीक है, अब अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में मेरे पास K Q1 दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम, Q2 यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम अपॉन आर स्क्वायर है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो G M1 दैट इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 1.6 into 10⁻⁻27 kilogram r square. So if I want to get the magnitude or the ratio of the magnitude, so electrostatic का और gravitational force का magnitude होगा K 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर अपॉन G 9.1 into 10⁻⁻31 into 1.6 into 10⁻⁻27 divided by r square. We will substitute the value of K. What is the value of K students? That is 9 into 10⁻9. We have discussed in our previous lecture. 9 into 10⁻9 और ये हो जाएगा मेरे पास into 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर। और अगर हम नीचे देखेंगे तो फिर मेरे पास G की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6.67 इंटू 10⁻11 और वो हो जाएगा मेरे पास 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू 1.6 इंटू 10⁻27। तो जो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करें फॉर वन प्रोटॉन एंड वन न्यूट्रॉन, व्हेन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू we will get answer 2.4 into 10⁻39। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे we will get is approximately 2.4 into 10⁻39। this is the ratio। ठीक है, ये कब? जब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है। अगर मेरे पास दोनों ही प्रोटॉन होते, इन द सेकेंड सिनेरियो व्हाट ही इज आस्किंग, अगर मेरे पास दोनों ही प्रोटॉन होते तो उस केस में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस था r, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो वही रहता, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स में मेरे पास मास 9.1 की जगह 1.67 वाला सिनेरियो आ जाता। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए रेशियो मेरे पास हो जाएगा K 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड Fg इज इक्वल्स टू G 1.6 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर, because the mass of proton will be same for both of them and that will be 1.6 to 10⁻⁻27 का। So I'll substitute the value and I'll get it 9 into 10⁻9 1.6 into 10⁻⁻19 का स्क्वायर and below is G that is 6.67 into 10⁻11 1.6 into 10⁻⁻27 का स्क्वायर। Now coming to this part, we will have the value or the ratio is around 1.3 into 10⁻36। This will be the ratio when only two protons are taken to be in consideration. So 1.3 into 10⁻36। Now coming to the second part of the question, the second part of the question says that key find the acceleration in both the cases। राइट हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन निकालना है। 11th क्लास में हमने अच्छे से पढ़ा हुआ है कि हमारे पास एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से लगने वाला एक्सेलरेशन निकालना है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं। दैट इज केस 1 के लिए जब मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन हो, राइट, दैट इज इक्वल्स टू, और दोनों अगर प्रोटॉन हुए तब भी मेरे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो सेम रहेगा, दैट इज K Q1 Q2 सेम है दोनों के और r स्क्वायर।
So I'll substitute the value. I will have 9 into 10 raised power 9 into 1.6 into 10 raised power minus 19 into 1.6 into 10 raised power minus 19 upon r square. At what distance they are being placed? They are being placed at a distance of 1 Armstrong, that is 10 raised power minus 10 meter, right? So it is 10 raised power minus 10 meter का square. इसको solve करेंगे तो we will get a force or the value of the force as 2.3 into 10 raised power 2.3 into 10 raised power minus 8 न्यूटन. अब हमें पता है कि फोर्स कितना है बेटा 2.3 into 10 raised power minus 8 न्यूटन. एंड फोर्स का फॉर्मूला होता है मेरे पास मास इनटू एक्सेलरेशन. तो अगर एक्सेलरेशन मेरे को निकालना है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा F/m. अगर मेरे को एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन that is equals to 2.3 into 10 raised power minus 8. The mass, what is mass of electron? 9.1 into 10 raised power 31 kilogram, right? And if I want to calculate, this is meter per second square, and if I want to calculate the acceleration of proton, then it will be Fe upon mass of proton is equals to 2.3 into 10 raised power minus 8 divided by 1.67 into 10 raised power minus 27 kilogram, that is meter per second square. So approximately value I'll have around 2.5 into 10 raised power 22. This will 2.5 into 10 raised power 22 meter per second square, and another is 1.4 into 10 raised power 1.4 into 10 raised power 19 meter per second square. I think this is clear to everyone. This question is very much important because this is containing a very n number of the parts in which electron and proton was there, the combination of proton and proton was there. He was comparing the electrostatic force and gravitational force for both the cases, and in both the cases if there is an electrostatic force, then he was calculating the acceleration of electron and acceleration of proton. Little bit calculative and conceptual. In both manner, this is important. Question number 1.5. This also we have discussed in the class. मेरे पास इसमें क्या है, एक बॉडी है जिसके पास मेरे पास चार्ज है, लेट्स सपोज Q चार्ज है, और बॉडी B है उसके पास मेरे पास Q2 चार्ज है. अगर ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है तो इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा स्टूडेंट्स? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. अब ये क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर मैं कोई थर्ड चार्ज बॉडी लेके आता हूँ, यानी कि C एक चार्ज बॉडी लेके आता हूँ और उसको मैं A से टच करवा देता हूँ, और D चार्ज बॉडी लेके आता हूँ और उसको मैं B से टच करवा देता हूँ, तो डेफिनेटली व्हेन इज द अनचार्ज बॉडी C and D आर अनचार्ज्ड बॉडी, when there is an uncharged body is being touched with a charged body, the charge will be equally divided, राइट. और आइडेंटिकल बॉडीज हैं, बिल्कुल सेम है. तो अगर मेरे पास ये Q1 है था पहले तो अभी Q1/2 होगा, और अगर B मेरे पास Q2 था तो ये Q2/2 होगा. फिर उसके बाद बोलता है कि अगर C और D को हटा दिया जाए और इन दोनों का डिस्टेंस भी पहले जो R था उसको R ना करके आधा कर दिया जाए, दैट इज R/2 कर दिया जाए. सो द डिस्टेंस विल बिकम हाफ 5 सेंटीमीटर, पहले 10 सेंटीमीटर था, so the distance become half, and charges are also has become half. So what he is asking कि what will happen if the charges has become half and the distance become half, what will be the new force? So the new force is equals to K Q1. Now what is Q1? Q2. What is Q2? Upon R square. What is R? We'll solve it. 4 से 4 कट जाएगा, then we will get the value same as previous one. It means the F will remains unchanged. It means if we make everything half, Q भी half कर दिया और distance भी half कर दिया, then in both the cases, or in this case, the force will remain unchanged. Coming to the next example,
So the force, look at the answer, the force will become F itself, whatever it was previous. राइट, इट से 2 से 2 और ये 2 का स्क्वायर डेट इज 4, ये सारे कट जाएंगे, तो Q एंड R स्क्वायर will remain same. So this was the solution of this example. Hope everyone has understood it. Next question पे आते हैं. Next question क्या था मेरे पास students? Example number 1.6 which is very much important. Please mark it a very important example. The example 1.6 is asking about, there are two parts, or there should be two parts, they are not giving the two parts. In the 11th class gravitation we have discussed the two parts or the similar examples, इसमें हमारे पास दो parts थे. यहाँ पर मेरे पास तीन charges हैं, Q1, Q2, Q3, तीनों equal हैं जिनकी value Q है, right? Equilateral triangle पे रखे हुए हैं. यहाँ पर मेरे पास net force पूछ रहा है चार्ज Q पे जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सबको. Let's move with the solution. Now what the question is saying, कि if there is an equilateral triangle, if there is an equilateral triangle and that equilateral triangle is of the length L. ये क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करवाने का मेन पर्पज़ ये है कि इसके अंदर कितने कंसेप्ट छुपे हुए हैं, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो भी कैसे सॉल्व होंगे और इसके मेन रिजल्ट्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं. राइट, तो ये मेरे पास अगर सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है ओ, ये सेंट्रॉइड पोजीशन है, तो डेफिनेटली ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन सेंटर, सर्कम सेंटर सारे एक ही होते हैं. ये डिस्टेंस मेरे पास L था, तो अब मेरे पास डिस्टेंस हो जाएगा L/2. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है तो हम इजीली इसकी लेंथ निकाल सकते हैं. बट मेरे को ऐसे नहीं करना, मैं क्या चाहता हूँ कि इसकी डायरेक्ट लेंथ निकाल दूँ. दिस इज A, दिस इज B and this is C and this is O. Obviously Q charge should be placed here. Now the main important thing is the length of AD. What is the length of AD? The AD is equals to √3/2 of the height of equilateral, the side of equilateral triangle. The height of equilateral triangle is equals to √3/2 the side of equilateral triangle. ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो निकाल लेते हैं हम. ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं. इन ट्राइंगल ABD we will apply Pythagoras theorem, so we can say that AB square is equals to AD square plus BD square. तो हमें पता है कि AB स्क्वायर है L स्क्वायर और AD स्क्वायर हमें निकालना है, तो हमारे पास होगा BD स्क्वायर इज L/2 का होल स्क्वायर. सो वी कैन से डैट कि AD स्क्वायर इज नथिंग बट L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाय 4. सो वी विल गेट AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3/2 L. अगर मैं यहाँ से स्क्वायर रूट ले लूँ तो इस स्क्वायर को डालूँ, सो AD कितना आ जाएगा मेरे पास √3/2 A, that is side of equilateral triangle. So height of equilateral triangle is √3/2 A. अब दूसरी very much important property which you have studied कि centroid of any equilateral triangle divides its median in which ratio? 2:1 ratio. इसका मतलब AO is equals to 2/3 of the complete AD, that is equals to 2/3 of √3/2 A, that is A by √3, and DO is nothing but 1/3 of AD, that is equals to A by 2√3. हमें DO की इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट हमारी किसकी है? सिर्फ AO की. तो अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास जो डिस्टेंस है किसी भी चार्ज का
और दूसरा कैपिटल क्यू चार्ज से, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, a/√3। और ये तीनों के लिए डिस्टेंस सेम है क्योंकि तीनों के लिए ये सेंट्रॉइड के काम कर रहा है। नाउ अगर मेरे पास तीनों सेम पोलैरिटी के हैं, मतलब कि Q1, Q2, Q3 तीनों आइडेंटिकल हैं और तीनों Q हैं, और कैपिटल Q मेरे पास तीसरा चार्ज है और वो चार्ज सेंट्रॉइड पे रखा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में फोर्सेस किस डायरेक्शन में लग रहेंगे स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले कि सेंट्रॉइड पे लगने वाला जो चार्ज है वो, और वर्टेक्स पे जो चार्ज है, इन दोनों के बीच में फोर्स कहाँ लग रहा होगा। अगर इन दोनों को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ये सारे चार्ज मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, तो डेफिनेटली इन दोनों में लगेगा रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ, इन दोनों में लगेगा रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ, और इन दोनों में लगेगा रिपल्सिव फोर्स इधर की तरफ। लेकिन मैं सेंट्रॉइड पे चार्ज निकालना चाहता हूँ, सेंट्रॉइड पे फोर्स, तो सेंट्रॉइड पे पहले वाले एक ही चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ होगा, डाउनवर्ड। सी की वजह से सेंट्रॉइड पे कहाँ होगा, और इसकी वजह से कहाँ होगा, इधर की तरफ। लेट्स रीड्रॉ दिस डायग्राम और दिस वेक्टर डायग्राम इन डाउनस्टार्स। लेट सपोज ये मेरे पास सेंट्रॉइड है, इस पे एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, और एक फोर्स यहाँ लग रहा है, राइट। अब ये जो फोर्सेस लग रहे हैं उन फोर्सेस की वैल्यू बता देते हैं हम तुम्हें, दैट इज F ऑन O ड्यू टू B, F ऑन O ड्यू टू C एंड F ऑन O ड्यू टू A। डायग्राम में देख लेना O और A क्या है। अगर हम देखें तो सारे चार्जेस आइडेंटिकल हैं, सब Q Q Q हैं, तो अगर मैं F ऑन O ड्यू टू A निकालता हूँ तो वो कितना आ जाएगा, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज नथिंग बट √3/2 का अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू AO का स्क्वायर। ये दोनों ये सारी क्वांटिटीज़ हर चार्ज के लिए और हर फोर्स के लिए सेम रहेंगी। Q सेंटर पे सेम है, वर्टेक्सेस के चार्जेस सारे सेम है, और AO जो डिस्टेंस है वो मेरे पास मीडियन वाला ये जो ग्रीन लाइन है ये सारे के सारे सेम है, एंड दैट इज इक्वल्स टू A/√3, राइट। सो वी कैन से दैट कि these all charges will be equal in magnitude. OA, OC and OB. लेट सपोज इनको मैंने दे दी वैल्यू F, इनको मैंने एक नई वैल्यू दे दी दैट इज F। अब इनके बीच के एंगल्स की बात कर लेते हैं। दिस इज 120 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री एंड दिस इज ऑल्सो 120 डिग्री। सो we will solve it by the vector resolution और vector resultant method। resolution method भी अप्लाई कर सकते हो, resultant भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर हम resultant अप्लाई करें तो अगर मैं इन दो चार्जेस OC और OB के बीच का resultant निकालूंगा then it will be in exact mid of it। क्यों? क्योंकि 120 डिग्री एंगल है और ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब भी मैग्नीट्यूड सेम होता है तो बिल्कुल बीच में से रिजल्टेंट निकलता है, मतलब दिस विल बी अराउंड 60 डिग्री, मतलब दीज टू फोर्सेज विल बी एट 180 डिग्री। नाउ सबसे पहले हम रिजल्टेंट 1 निकाल लेते हैं। So the resultant 1 if I calculate that is equals to under root of f1 square plus f2 square plus twice of f1 f2 cos theta. Yes, so it is FOC square plus FOB square plus twice of FOC FOB into cos theta. The cos is 120, cos 120 is nothing but minus 1/2. So it will be f square plus f square plus this will be same, इन सबको मैंने एफ सब्सटीट्यूट किया, सो इट विल बी 2f स्क्वायर cos 120 इज नथिंग बट -1/2, सो 2 से 2 कैंसिल, सो इट विल बी दिस विल बी माइनस एफ स्क्वायर, सो द न्यू रिजल्टेंट विल बी f। दिस इज माई R1 रिजल्टेंट। सो व्हाट वी फाउंड कि मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है f, और नीचे वाली वैल्यू भी कितनी है f, दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। एक पॉइंट पे ये F चार्ज फोर्स लग रहा है और नीचे भी F फोर्स लग रहा है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, तो नेट फोर्स कितना आएगा इसका स्टूडेंट्स ऑन द सेंट्रॉइड, दैट इज 0। द नेट फोर्स
will be 0. अगर मेरे पास नेट फोर्स 0 है तो हमने देखा कि ये जो नेट फोर्स था, ये नेट फोर्स वाज इंडिपेंडेंट ऑफ charge q which is being placed at the center. It is independent of value of any charges, value of q charge. It is independent of length of equilateral triangle, length of equilateral triangle, right? It means the net force on the centroid or the center of any figure will be 0 if it is symmetrical in nature. now कुछ कंक्लूजन्स देख लेते हैं हम। जैसे कि मेरे पास एक स्क्वायर है, तो इस स्क्वायर पे अगर मेरे पास सारे आइडेंटिकल चार्जेस रखे हुए हैं क्यू 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 क्यू, तो बीच में मेरे पास कोई भी चार्ज रखा हो उस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0। बीच वाले चार्ज पे फोर्स 0 होगा स्टूडेंट्स, वर्टेक्स वाले चार्जेस पे 0 फोर्स नहीं होगा। उसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में निकालेंगे। अगर मेरे पास कोई भी 3 चार्जर रखे हुए हैं, तीनों आइडेंटिकल हैं, चाहे तीनों नेगेटिव हैं चाहे तीनों पॉजिटिव हैं, सेंट्रॉइड पे मेरे पास नेट फोर्स कितना होगा? द नेट फोर्स विल बी 0, राइट। अगर मेरे पास एक हेक्सागन रखा हुआ है तब भी मेरे पास नेट फोर्स कितना होगा? द नेट फोर्स विल बी 0। आर यू गेटिंग इट? द नेट फोर्स विल बी 0। सो द एफ नेट विल बी 0। द फिगर शुड बी सिमेट्रिक, the symmetric or regular figure, and the distribution of the charges should be symmetric. एक स्क्वायर वाले में अगर हम ऐसे देखें कि अगर स्क्वायर वाले में अगर मेरे पास इक्वल एंड सेम चार्जेस आर प्लेस्ड at the opposite vertices, then also the net force will be 0. देखो अगर मेरे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो इसकी वजह से मेरे पास इधर की तरफ जाएगा, ये both will cancel out and these both will cancel out. And in all these scenarios it is independent of the charge placed at the center of the figure. I think the concept is clear to everyone. We will discuss the next examples in the next class from example 1.7 onwards. Till then, please revise the topics and keep watching my videos. Have a nice day.